Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we are going to learn NCERT Class 5th EVS Chapter 19 A Seed Tells a Farmer's Story. What are the key concepts of this chapter? Different types of seeds, benefit of including millets in our diet, steps of farming, earthworm as farmer friends, crotons give signal when soil is dry, compost pit. These all topics we are going to learn through this chapter. First is seed. Children, we know that this chapter is based on seed. So before going to start the chapter, we should know what is a seed. Seed is a tiny part of a plant which give rise into new plant. ये बहुत छोटा सा पार्ट है प्लांट का जो नए प्लांट में बनता है. A new plant grow from seed. जो नया प्लांट है वो हमारा सीड से बनता है. Several example of seeds are pulses, chana, kidney beans, rajma, oil seeds, mustard, sesame, groundnut, grains, rice, wheat, bajra, millets. Flower seed, marigold, sunflower. Each seed has its own size, shape, color and texture. These are the picture of some seeds. Next is what are millets? Millets are cereal crops and small seed grasses which are widely used in African and Asian countries. They are mainly cultivated in dry region of Africa and Asia. These small crops were used as human consumption as well as for fodder for animals. They are also used for feed birds and animals. Types of millets found in India. This is a picture. Next is what are the benefit of including millets in our diet? There are several benefits of including millets in our diet. Number one is all the millets are rich in antioxidant. They help to flush out harmful chemical from our body. Second is they are also known as to improve our immunity level. Third is they are rich in fiber, so they help to regulate the digestion process. Millets used to be a part of our ancestor diet, but with the passage of time we switch over to junk food. धीरे धीरे हम जंक फूड की तरफ जाते चले गए और we forgot about these super food. हम इस फूड को भूल ही गए. But again in the 21st century we are shifted our focus toward them. But अब दोबारा से हम लोग इनकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें इनकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगी है. Next है what are the steps of farming? There are seven steps of farming. First is plowing. Plowing is digging and losing the soil to make it smooth. With the help of khunti, we can do with the help of khunti, plow and tractor. Second is sowing of seed. बीजों को बोना. With the help of finger or seed drill, we can do this step. Next is manuring. जब हमारी क्रॉप्स रेडी हो जाती है वी शुड पुट मैन्योर. इट कैन बी फर्टिलाइजर और कंपोस्ट पीट. फोर्थ इज इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द प्लांट. हम जो हमारे क्रॉप्स होती है उनमें पानी डालते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और नेचुरल कैनाल. फिफ्थ इज वीडिंग. रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. चिल्ड्रन आपने देखा होगा हमारी जो क्रॉप होती है उसके साथ हमारे कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं जिन्हें हमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में निकालना होता है. क्यों निकालते हैं? अदरवाइज जो हमारी मेन क्रॉप है जो हम न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं वाटर डाल रहे हैं वो उसको नहीं मिलेगा. वीड भी उसको ले लेंगे. तो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव वीड फ्रॉम द फील्ड बिकॉज वीड्स टेक अवे वाटर फूड एंड मिनरल्स. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. जब हमारी क्रॉप रेडी हो जाती है नेक्स्ट स्टेप इज कटिंग द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ सिकल और सम मशीन. एंड द लास्ट स्टेप ऑफ फार्मिंग इज स्टोरिंग एंड स्टोरेज. जब हमारी क्रॉप रेडी हो जाती है वी नीड टू स्टोर आवर क्रॉप विद सो दैट उसमें जो हमारे प्रिवेंट हो जाए जो बैक्टीरिया और फंगस ना लगे इसलिए हमें उसे मॉइस्चर जो कंटेंट है उसको रिड्यूस करके हमें उसे स्टोर करना पड़ता है.
नेक्स्ट इज अर्थवर्म एज फार्मर्स फ्रेंड। कैसे अर्थवर्म फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जो अर्थवर्म होते हैं दे सॉफ्टन द सोइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ एंड मेक टनल। वो सोइल के अंदर टनल बना देते हैं जिससे कि जो हमारा एयर एंड वाटर है इजिली हमारा सर्कुलेट होता रहे सोइल में। और अर्थवर्म क्या करते हैं, अर्थवर्म ऑल्सो ईट डेड लीव्स एंड प्लांट एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सोइल, जिससे कि वो सोइल को फर्टाइल कर देते हैं। So they improve the quality of soil like water holding capacity, moisture and content by boring into the soil and making it loose and porous. So ये इस तरह से हमारे जो अर्थवर्म है वो फार्मर के बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि हमारी सोइल की फर्टिलिटी को हमारे अर्थवर्म बढ़ाते। नेक्स्ट इज चैप्टर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। कैसे एक छोटा सा सीड एक फार्मर की स्टोरी को बताता है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। आई एम अ स्मॉल सीड, आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। बाजरा सीड हमारा ऐसा दिखाई देता है। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। 1940 से वो एक छोटे से वुडन के बॉक्स में था। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी। वो अपनी स्टोरी बताना चाहता है। दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी but not mine alone. It is also the story of my farmer दामजी भाई। वो अकेले बाजरा की स्टोरी नहीं है, वो उसके फार्मर दामजी भाई की भी स्टोरी है। आई वॉज बोर्न इन वैंगम इन गुजरात। ये गुजरात में वैंगम एक विलेज है, वहां पर बाजरा की बहुत अच्छी फसल हुई थी। लेटस फाइंड कहाँ पर है हमारा गुजरात। गुजरात हमारा यहाँ पर है। इट इज ऑल्सो ए कोस्टल स्टेट। ये पिंक कलर का हमारा गुजरात है। दैट ईयर देर वॉज ए गुड बाजरा क्रॉप। उस साल बहुत अच्छी बाजरा की क्रॉप हुई थी। हमारी बाजरा की क्रॉप ऐसे दिखाई देती है फील्ड में। देर वॉज ए फेस्टिव मोड इन द विलेज। जब हम देखते हैं कि हमारे विलेज में बहुत अच्छी से क्रॉप होती है तो विलेज के जो लोग होते हैं वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रीन एंड वेजिटेबल। ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप। हर साल दामजी भाई क्या करते थे, जो क्रॉप होती थी अच्छी क्रॉप होती थी उसमें से कुछ सीड साइड में रख देते थे। ऐसे सीड हमारे वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते थे। कैसे रखते थे, वो कैसे स्टोर करते थे। उस टाइम पर कोल्ड स्टोरेज तो नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, एक लौकी, जो लौकी होती है हमारी, उसको मड से कोट करके उसे उसमें कुछ उसे वुडन बॉक्स बनाते थे और उसमें कुछ हमारी नीम की पत्तियां भी डाल देते थे। जो नीम होता है दैट एक्ट एज एन एंटी फंगल एजेंट। वो उसमें फंगल और बैक्टीरिया नहीं लगने देता, मोल्ड्स नहीं लगने देता। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्सेस एंड दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम। इन दोज डे दामजी भाई और उनके कजन एक साथ रहते थे, वो एक साथ खाते थे, हार्वेस्टिंग करते थे और अच्छे से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी मनाते थे। इन द विंटर, विंटर में वो लोग क्या करते थे, इट वुड बी टाइम टू एंजॉय ऊंधिया। ऊंधिया एक तरह का फूड होता था। उसको कैसे बनाते थे वो, ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इनटू ए क्ले पोट अलोंग विथ फ्रेश स्पाइसेस। द पोट वाज सील्ड एंड kept between hot coal and the vegetable cook slowly in this special cooker। इसमें वेजिटेबल जो होती थी वो धीरे धीरे कुक होती थी और वो उसको भूल जाते थे और अपसाइड डाउन उसको ऐसे घुमाते थे। इसलिए इसे गुजरात में इसे ऊंधिया बोलते हैं। इसको किसके साथ खाते थे, बाजरा की रोटी के साथ, और जो चूल्हे पे हमारी बनाई जाती थी, और बटर कर्ड और बटर मिल्क के साथ ये सर्व होती थी। फार्मर वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, बहुत सारी अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करते थे। कुछ क्रॉप्स में से जो अच्छे सीड्स होते थे रख लेते थे, अपने लिए रख लेते थे, रेस्ट वो शॉपकीपर को सेल कर देते थे। सम फार्मर ऑल्सो ग्रेव कॉटन, कुछ ने कॉटन भी ग्रो करी थी। एंड एट होम फैमिली मेंबर स्पन कॉटन ऑन ए चरखा, जैसे स्पाइनिंग व्हील होता है जो हमारा महात्मा गांधी के पास था। ऐसा होता है हमारा स्पाइनिंग व्हील। इसमें हम क्या करते हैं, कॉटन से हम धागा बनाते हैं, धागे को हम एक वुडन लकड़ी पे लपेटते हैं, फिर उससे हमारे क्लोथ बनते हैं। नेक्स्ट, आर रोटीज मेड इन योर होम, फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड। जनरली आजकल सब लोग व्हीट की रोटी खाते हैं, बाजरा, सोरगम, ये सब तो सब भूल ही गए हैं। हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा ज्वार, डिड यू लाइक दिस। आपने कभी खाई है रोटी बाजरा और ज्वार से बनी हुई, बहुत अच्छी होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी होती है। फाइंड आउट एंड राइट,
इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट। आपके घर में जो आपकी ग्रेन्स और पल्सेस होते हैं उनको इंसेक्ट के बचाने के लिए आप क्या करते हैं? हम उन्हें ड्राई करते हैं और एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। व्हाट which are the different festivals related to farming celebrate in different seasons? Find out more about any one such festival and write in your notebook. चिल्ड्रन, हमने पढ़ा था, हमने ग्रेड 4 में भी पढ़ा था, बहुत सारे हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं जैसे ओणम, पोंगल, मकर संक्रांति, बैसाखी। नेक्स्ट इज find out about the crops, cereals, vegetables, pulses that are grown in your area. And can you recognize these grains name? आप इनका नाम जानते हो? Yes, this is maize and this one is mustard, wheat, बाजरा। ये wheat है हमारी और ये हमारा बाजरा है। नेक्स्ट इज व्हेन टाइम्स चेंज, कैसे टाइम चेंज होता चला गया दामजी भाई से उनके बेटे की इसमें कैसे वो शिफ्ट हुआ और कैसे 20 इयर्स में कैसे टाइम चेंज हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। ओवर द इयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज। सम प्लेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल। दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैज बीन बिल्ट ऑन ए बिग रिवर। रिवर्स के आसपास डैम बन गए जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिली, लेकिन वो लोग पानी के लिए भी प्रॉब्लम होने लगी उन्हें। वो अपने फार्मर्स जो है वो पानी के लिए प्रॉब्लम फेस करने लगे। सो मोस्ट फार्मर बिगेन टू ग्रो ओनली दीज। So soon we old friends bajra or jowar or also vegetable were forgotten and dismissed. Even from Damji Bhai field, farmer even began to buy seeds from the market. Farmer क्या करने लगे? मार्केट से सीड लाने लगे हैं। People said that there were new kind of seeds, so farmer did not need to store seed from the old crop. So अब farmer को पुरानी क्रॉप में से अपने सीड को स्टोर करने की जरूरत नहीं लगी, वो मार्केट से नई सीड लाने लगे। Now people in the village cook and eat together only on very special days. अब गांव के लोग बहुत स्पेशल डे पे ही मिलते थे। पहले वो बहुत जल्दी जल्दी मिलते थे, लेकिन अब वो कुछ स्पेशल डे पर ही मिलते थे। As they eat, they would remember how tasty and food used to be in the past. उनको याद आती थी वो पास्ट में कैसे एक साथ बैठ के खाते थे, ऊंधिया को खाते थे और वो कैसे एंजॉय करते थे। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। दामजी भाई धीरे धीरे ओल्ड होने लगे, बूढ़े होने लगे। हिज सन हसमुख लुक आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली। उनका बेटा हसमुख ने फैमिली और फील्ड का ध्यान रखा। हसमुख वॉज मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। हसमुख ने बहुत सारी मनी बनाई फार्मिंग से। ही रिबिल्ड द होल्ड हाउस। उसने पुराने घर को दोबारा से रिबिल्ड किया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स ऑफ फार्मिंग। उसने नई नई मशीन्स परचेज की फार्मिंग के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर लगाए पंप वाटर के लिए। मोटरसाइकिल परचेज करी सिटी जाने के लिए। ट्रैक्टर परचेज करे फील्ड को प्लो करने के लिए। द ट्रैक्टर कुड बी डन इन ए डे। जो ट्रैक्टर हमारा क्या करता है, बहुत सारे लोगों का काम एक दिन में कर देता है। जो बुलक हमारी 10 डेज लगाती थी, ट्रैक्टर से हम एक दिन में बहुत सारे फील्ड को प्लो कर सकते थे। हसमुख वुड से, अब हसमुख कहते हैं, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। हम बहुत स्मार्टली और समझदारी से हम फार्मिंग कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन मार्केट एट ए गुड प्राइस। हम वही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं जो हम मार्केट में गुड प्राइस में सेल कर सकते हैं। विथ प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। जो प्रॉफिट हमें फील्ड से होता है उससे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स में जो हमारे बाजरा के सीड थे वो क्या बोलते हैं, देखते हैं। आई एंड अदर सीड्स हैड अ डाउट्स, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस। ये सच में प्रोग्रेस है कि हसमुख भाई ने ट्रैक्टर लिए, इलेक्ट्रिक पंप यूज किए, पुराने सीड्स को छोड़ के नए सीड्स परचेज किए। लेट अस सी। देर इज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड लाइक अस, एनिमल लाइक द बुलक्स। क्योंकि एनिमल भी यूज नहीं करते, वो लोग ट्रैक्टर यूज करने लगे। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज कम, जब ट्रैक्टर आ गए तो बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिला, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो हाउ विल दे अर्न मनी, वो कैसे मनी अर्न करेंगे, और व्हाट विल दे लीव ऑन, वो कैसे रहेंगे। तो जो बाजरा के सीड थे वो ही सोचने लगे कि कैसे होगा, फिर अब ये सब लोग कैसे करेंगे। Now discuss. The Bajra seeds saw differences in the way of Damji Bhai and Hasmukh did farming. For example, in irrigation, plowing, what were these differences? क्या differences थे दामजी भाई की फार्मिंग में और हसमुख भाई की फार्मिंग में? अभी हम लोग देखते हैं।
दामजी भाई की फार्मिंग को हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग बोलेंगे। हसमुख भाई की फार्मिंग को हम मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग बोलेंगे। दामजी भाई क्या करते थे, फील्ड को प्लो करने के लिए बुलक का यूज करते थे और हसमुख भाई ट्रैक्टर का यूज करते थे। दामजी भाई जो सीड सो करते थे वो हम क्या करते थे, ओल्ड सीड यूज करते थे, लेकिन हसमुख भाई ने न्यू सीड परचेज करे फ्रॉम द मार्केट। दामजी भाई जो मैन्योर यूज करते थे और हसमुख भाई ने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना स्टार्ट किया। दामजी भाई ने क्या किया, जो वाटर डालते थे वो मैनुअली डालते थे फ्रॉम वेल और कैनाल, लेकिन हसमुख भाई ने इलेक्ट्रिक पंप और ट्यूबवेल यूज किए। दामजी भाई जो हार्वेस्टिंग करते थे वो मैनुअली करते थे, हाथ से काटते थे, उसको सिकल से काटते थे, लेकिन हसमुख भाई किससे काटने लगे, मशीन से और हार्वेस्टर से। So these are the differences between Damji Bhai farming and Hasmukh Bhai farming. We can call traditional method of farming or modern method of farming. Next है Hasmukh said, with profits from our fields we can progress. What is your understanding of progress? हसमुख भाई ने कहा जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है फील्ड से उससे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रेस वर्ड से। हसमुख भाई अपनी जो लाइफ थी उसको अच्छे से कर पा रहे थे, वो अपने जो लिविंग थी उसको अच्छे से जी पा रहे थे, अच्छी एजुकेशन अच्छा न्यूट्रिशन वो ले रहे थे। जो प्रोग्रेस का हमारा मीनिंग होता है बेटर लाइफ स्टाइल। What kind of progress would you like to see in your area? We can see equipped hospital, better road, good transport and good education system in schools. मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, धीरे धीरे क्या हुआ, द नेक्स्ट 20 years सॉ इवन मोर चेंजेस, अगले 20 years में और चेंजेस हमें देखने को मिले। विदाउट काउज एंड बुफेलोज देर वॉज नो काउ डंग, जब हमारी काउ और बुफेलो ही नहीं रहेंगे तो हमें काउ डंग भी नहीं मिलेगा, जब काउ डंग नहीं मिलेगा तो हमें मैन्योर नहीं बना पाएंगे हम लोग। देन फिर हसमुख भाई को बाई करने पड़े एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर। The new kind of seeds were such that the crop was easily affected by harmful insect। जो हसमुख भाई ने नए तरह के सीड्स को यूज किया था उनको कोई भी इंसेक्ट हार्मफुल एकदम से इफेक्ट कर लेते थे, जिसके के कारण हसमुख भाई को अपनी फील्ड में अपनी क्रॉप में मेडिसिन स्प्रे करनी पड़ती थी। ऐसे वो स्प्रे करते थे, मेडिसिन बहुत बैड स्मेल होती है इसकी मेडिसिन की और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। द कैनाल वाटर वॉज नॉट एनफ फॉर द न्यू क्रॉप, अब कैनाल का वाटर भी न्यू क्रॉप के लिए नहीं सफिशिएंट रहा। ऑल द फार्मर यूज पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द डीप अंडर द ग्राउंड, सब फार्मर क्या यूज करने लगे, पंप यूज करने लगे, जिसके कारण उनको बैंक से लोन भी लेना पड़ रहा था। और बैंक से जब उन्होंने लोन लिया तो उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था और वो बैंक का लोन को रिपे भी नहीं कर पा रहे थे। बट देर वॉज लिटिल प्रॉफिट, एवरी वन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो कॉटन प्राइस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। सब लोग सिर्फ कॉटन के प्राइस, कॉटन को ही ग्रो करने लगे। जब हम एक ही काइंड की क्रॉप को ग्रो करेंगे तो उसका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो फार्मर जब कॉटन ही ग्रो कर रहे थे तो वहां पर जो कॉटन की जो प्राइस था वो कम हो गया। द सोइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम, सोइल भी वो पहले जैसी नहीं रही। जब हम एक ही तरह की क्रॉप को बार बार सोइल में ग्रो करेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well। अब वहां पर कुछ भी अच्छे से ग्रो नहीं करता। It was becoming difficult to earn a living by farming alone। अब उनके लिए फार्मिंग से लिविंग को भी करना मुश्किल पड़ रहा था, अपनी जीवन की चल क्रिया को भी चलाना मुश्किल पड़ रहा था। हसमुख टू चेंज विद दिस टाइम, हसमुख भी धीरे धीरे चेंज हो गए, उनको बैंक का लोन नहीं दे पा रहे थे, वो बहुत टेंस और एंग्री रहने लगे। हिज एजुकेटेड सन, उनका एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, उसने परेश ने फार्मिंग करने का निर्णय नहीं लिया। उसने सोचा आई ही नाउ स्टार्ट वर्क एज ए ट्रक ड्राइवर, उसने ट्रक ड्राइवर बनना के लिए सोचा। उसने देखा कि इसके पापा बहुत टेंस रहते हैं फार्मिंग से और बहुत ही एंग्री रहते हैं, इसलिए उसने ट्रक ड्राइवर बनना स्वीकार किया इंस्टेड ऑफ डूइंग द फार्मिंग। After all, the bank loan still had to be repaid. Often Paras did not come home for days,
At time he is away for a week. 2 days back when he came back home, परेश started looking for something. परेश ने जो उसके दादाजी ने जिसमें वुडन बॉक्स में बाजरा के सीड रखे थे, परेश ने उस बॉक्स को निकाला और उसमें उसको बॉक्स को बोला कि मुझे उसमें अपने टूल्स डालने हैं जो हमें ट्रक में यूज करते हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी. बाजरा सीड बोलते हैं, अब आपको समझ आया कि मैंने आपको ये स्टोरी क्यों समझाई. ये इसलिए थी स्टोरी, इसमें ये पता चलता है इस स्टोरी से कैसे हमारे जनरेशन से जनरेशन हम डेवलपमेंट की तरफ तो जाते रहते हैं, लेकिन हमारी जो नई टेक्निक के साथ साथ हम अपनी पुरानी चीजों को भी भूलना नहीं चाहिए. डिस्कस एंड थिंक व्हाट कैन हैपन टू हसमुख फार्म्स आफ्टर सम ईयर. क्या हुआ हसमुख के फार्म में सम ईयर. हमने देखा हसमुख ने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई. Damji Bhai son Hasmukh choose to become a farmer like his father. Hasmukh son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so? क्यों ऐसा हुआ. दामजी भाई के बेटा हसमुख ने फार्मिंग चूज की लेकिन हसमुख भाई के बेटे परेश ने फार्मिंग नहीं चूज की, उसने ट्रक ड्राइवर बनना चूज किया. क्यों किया, इसके बहुत सारे रीजन थे. पारस ने देखा कि उसके पिता हैं वो लॉस में चल रहे हैं, वो बैंक का लोन पे भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो फार्मिंग में है, इसीलिए उसने सोचा कि मुझे ट्रक ड्राइवर बनना है, मुझे फार्मिंग नहीं करनी है. The seed were not sure that what Hasmukh was talking about was really progress. What do you feel? सीड को ये नहीं पता था, जो सीड बाजरा के सीड बॉक्स में थे वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि हसमुख कह रहे हैं कि हम रियली प्रोग्रेस कर रहे हैं. व्हाट डू यू फील. आपको लगता है कि हसमुख सच में प्रोग्रेस कर रहा है कि वो नई टेक्नोलॉजी ला रहा है. आई थिंक द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू ओवर एक्सप्लॉइट द सोइल. जब हम न्यू मेथड यूज करते हैं तो वो सोइल की फर्टिलिटी, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण हम मशीन यूज करते हैं. मशीन क्या करती है, 10 लोगों का काम एक मशीन यूज करती है जिससे कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. सो आई थिंक सो दिस इज नॉट ए प्रोग्रेस, दिस इज द लेस प्रोग्रेस. Next is, have there been any change near your area which may be difficult to call progress? What changes are these? What are the different opinion about them? Children, write the answer in your notebook. Yes, there are many changes which may not be called progress in the real sense. कैसे होते हैं वो? Let us take example of growing number of vehicle on road. हम देखते हैं बहुत सारे व्हीकल आ गए हैं आजकल रोड पे, लेकिन जिसके कारण पोल्यूशन भी हमारा इंक्रीज हो गया है और हमारे प्लांट्स भी कम हो गए हैं, ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया है. तो जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं. नेक्स्ट हमारी एक रिपोर्ट है आंध्र प्रदेश की. नलप्पा रेड्डी की ये स्टोरी है. ये एक फार्मर थे जिन्होंने बैंक से 24,000 रुपीज़ लोन लिया था. अच्छी क्रॉप ना होने के कारण वो बैंक को लोन जो वो था मनी था उसको पे नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने किसी प्राइवेट वेंडर से 34,000 और पे करने के बाद भी उन्होंने लोन लिया और 34,000 पे करने के बाद भी वो बैंक को लोन कंप्लीट नहीं कर पाए, वो पे नहीं कर पाए, जिसके कारण बैंक ने उन्हें जेल भेज दिया. लेकिन क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक से करोड़ों का लोन लेते हैं, उसको पे भी नहीं कर पाते, लेकिन बैंक उन्हें जेल नहीं भेजता. ये अंतर है हमारे बिजनेसमैन और फार्मर में. हमारे फार्मर को बैंक जेल भेज देता है लेकिन बिजनेसमैन को जेल नहीं भेज पाता. नलप्पा रेड्डी की ये स्टोरी है. बहुत सारे फार्मर ने सुसाइड किया था बिटवीन 2009 1997 टू 2005. नियर अबाउट 1,50,000 फार्मर ने सुसाइड किया था क्योंकि वो बैंक से लोन लिया, उस लोन को वो पे नहीं कर पाए जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया. नेक्स्ट है चिल्ड्रन, एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं और किसी फार्मर से जाकर उन क्वेश्चंस को पूछना है. आई एम गिविंग एग्जांपल, यू कैन राइट योर ओन क्वेश्चंस एंड आस्क. क्वेश्चन नंबर 1, सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन फार्मिंग. कितने साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं. फार्मर का आंसर 20 ईयर्स हो सकता है. विच वर द मेन क्रॉप्स यू ग्रो इन योर फील्ड. कौन सी मेन क्रॉप है. मेन क्रॉप हमारी राइस और वीट हो सकती है. विच आर द अदर क्रॉप्स यू ग्रो इन योर फील्ड लाइक मस्टर्ड एंड सम वेजिटेबल्स. हाउ डू यू इरीगेट योर फील्ड. अपने फील्ड में आप पानी कैसे डालते हैं. मे बी ट्यूबवेल यूज करते हैं और कैनाल यूज करते हैं.
नेक्स्ट हमारा एक और प्रोजेक्ट है, बच्चों ने एक सर्वे किया था बच्चों ने भास्कर बाई फार्म का। उसमें क्या करते हैं, जब बच्चे जाते हैं फार्म में तो वो देखते हैं कुछ हमारे ब्रांचेस जो ट्री की हैं वो ड्राई हो रही होती हैं, कुछ लीव्स ड्राई होती हैं जिन्हें इंसेक्ट खा रहे होते हैं, और कहीं पर बहुत सारा जो लीव्स हैं वो बहुत ड्राई हो रही होती हैं। जो भास्कर भाई बच्चों को बोलते हैं हमारे क्रोटन प्लांट्स जो होते हैं वो हमें सिग्नल देते हैं जब हमारी सोयल ड्राई हो जाती है, क्योंकि क्रोटन प्लांट्स क्या होते हैं बहुत डीप नहीं जाते सोयल में, सोइल के ऊपर ही ग्रो करते हैं। तो जो ऊपर का जब हमारा वाटर लेवल खत्म हो जाता है, सोइल ड्राई हो जाती है, तो क्रोटन प्लांट्स हमारे बता देते हैं, वो उनकी लीव्स ड्राई हो जाती है, जिससे कि फार्मर को भास्कर भाई को पता चल जाता था कि उन्हें अब अपनी क्रॉप में पानी डालना है। वी फाउंड द सोइल सॉफ्ट एंड क्रम्बलिंग। उन्होंने देखा कोकोनट के बड़े बड़े ट्री हैं, तो उन्होंने सोचा, बच्चों ने सोचा कि भास्कर भाई आर्टिफिशियल या केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते होंगे। लेकिन भास्कर भाई ने उन्हें बताया, मैं वी आर नॉट गोइंग टू बाई फर्टिलाइजर मेड इन द फैक्ट्री, हिज सोइल इज फर्टाइल बिकॉज ऑल द ड्राई लीव्स विच स्लोली रूट एंड मिक्स विद इट, जो ड्राई लीव्स हो जाती है उनको मिक्स करके विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वी नो दैट अर्थवॉर्म आर द फार्मर बेस्ट फ्रेंड। अर्थों हमारी सोयल में अंदर टनल बना देते हैं, जिससे कि हमारा जो सोयल होती है वो सर्कुलेट होती है, उसमें वाटर और पानी सर्कुलेट होता जाता है सोयल में, और हमारी सोयल जो होती है वो फर्टाइल रहती है। तो इस तरह से वो अपने फार्मिंग में फर्टिलाइजर यूज करते थे, मैन्योर यूज करते थे। Praveen told us about his uncle in the city who has dug a pit in his garden. उन्होंने गार्डन में एक पिट बनाया। He put dry leaves in the pit along with all the kitchen waste, peel of vegetable, fruits, leftover food, सारी चीजें उन्होंने उस पिट में डाल दी। He also has earthworm in the pit. उन्होंने earthworm भी थे उनकी पिट में। They turn the waste into the compost, जैसे कि उस जिसके कारण वो जो वेस्ट था वो हमारा कंपोस्ट में बन गया। कंपोस्ट मीन नेचुरल फर्टिलाइजर। सो दिस इज द वे हम नेचुरल फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं और कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नी ऑफ ए बाजरा सीड फ्रॉम ए फील्ड टू प्लेट। कैसे हमारा बाजरा सीड फील्ड से प्लेट तक आता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, हम फील्ड में जाकर उसकी कटिंग करते हैं, उनको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं सीड को, ये हमारा बाजरा सीड होता है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारे ओल्ड टाइमर हम लोग क्या करते थे, बाजरा सीड को चक्की में पीसते थे, फिर हमारा फ्लोर बनता था, उसको हम बनाते आटा बनाते हैं, फिर उससे हम रोटी बनाते थे, नेक्स्ट हम तवे पे उसके पकाते थे, और लास्ट हमारा स्टेप है हमारी रोटी प्लेट में आ जाती थी। ये हमारा स्टेप है, जर्नी है बाजरा की, कैसे फील्ड से वो प्लेट तक आती है। वट वी हैव लर्न, क्या लर्न किया हमने इस चैप्टर में। देयर हैव बीन मैनी चेंजेस ओवर टाइम इन आवर फूड। वट कैन दिस मीन, यूज द स्टोरी सीड स्टोरी एंड वट यू नो फ्रॉम योर एल्डर्स टू एक्सप्लेन। चिल्ड्रन हमने इस चैप्टर के थ्रू समझा कि बहुत सारे चेंजेस हमने अपने फूड में देखे हैं। क्या क्या चेंजेस हम देखते हैं, हम देखते हैं पहले हम बार्ले यूज़ करते थे, जौ यूज़ करते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाके हम व्हीट का जो आटा होता है उसको परचेज करके ले आते हैं डायरेक्ट, कुछ भी हम नहीं करते हैं, हम वॉश नहीं करते ग्रेन्स को, उनको चक्की में नहीं लेके जाते हैं पिसवाने के लिए। तो बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मैटर को एक्सप्लेन करते हैं। Next is what would happen if all the farmers were to use only one kind of seed and grow only one kind of crop. चिल्ड्रन क्या होगा अगर फार्मर सिर्फ एक ही तरह के सीड यूज करेंगे और एक ही तरह की क्रॉप ग्रो करेंगे। अगर हम एक ही तरह की क्रॉप ग्रो करेंगे, पहले तो हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। दूसरा, हम अगर हम एक ही तरह के क्रॉप यूज करेंगे तो हमारी जो बैलेंस डाइट है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दाल भी चाहिए होती है, सब्जी अलोंग विद राइस। सो हम जो हमारी बैलेंस डाइट है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।